This conference will now be recorded. As we discussed before, like the Microsoft Intune, Azure Active Directory is a type of PaaS service, platform as a services, which is responsible to manage our multiple platform. By using the single Azure Active Directory, we are able to control, we are able to manage lots of services in the sense like you can control and manage your Office 365 services, you can manage the Azure services, Intune services and Azure Virtual Desktop means एक ही Azure Active Directory के थ्रू आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को या मल्टीपल Azure सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं राइट these all are the points that we need to know in case of Azure Active Directory. These all are core component, which is really important for everyone who want to manage the Intune services. So we need to start from these basic terms: users management, group, custom domain, multi-factor authentication, SSPR, about the concept of Azure AD Join, about the concept of Azure AD Connect, and we'll discuss about the Azure AD licensing part. So I'm moving ourselves to Office 365 portal and then we'll move ourselves to uh, Microsoft Intune Services क्योंकि जो Azure AD का पैनल है वो आपको या तो Office 365 पे मिलेगा या फिर Azure Active Directory पे मिलेगा. Is that okay? Okay. Okay. This is our 365 portal. I created my portal by using the Gmail account. एक Gmail account के through हमने इस पे sign up किया है and now you can say that in this portal I have already added one custom domain which is really simple to manage. Uh, but we'll give you the step how we can add our custom domain. So open admin center and it will redirect you on page of Azure Active Directory. Under the admin center, we'll find the option related to the Azure Active Directory. Click on show all and यहाँ पे एक option दिखाई पड़ रहा है identity का. It will redirect you on page of Azure Active Directory. We'll use the same email ID. This is my mail ID that provided by Microsoft. इसी मेल आईडी के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का पोर्टल ओपन करेंगे endpoint.microsoft.com ओपन करेंगे दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की सर्विसेज है ना ऑल सर्विसेज आर मैनेज बाय द एजर एक्टिव डायरेक्टरी क्योंकि not all services especially user and licensing part managed by the Azure Active Directory. This is Azure AD panel and meanwhile I'm going to open endpoint.microsoft.com. You know very well about endpoint.microsoft.com is a type of it's a URL for Microsoft Intune services. Now this is Azure AD panel और ये अपने पास है endpoint.microsoft.com. Yes, we are able to manage the users, we are able to manage the groups, but I don't think we have any single option that help us to create, that help us to manage the licensing that you want to add with your users. आप यहाँ से user manage कर पाओगे, आप group manage कर पाओगे, you are able to create it, but about the licensing part means how we can activate the license, उसके लिए आपको SLED panel पे जाना पड़ेगा. Is that okay? And Okay. both platform में जो ये Intune जो AD है ना ये Azure AD है और ये अपने पास Intune का पोर्टल है ना both are connected to each other. मतलब जो यूजर्स हमने यहाँ पे बना रखे हैं Azure AD के पैनल पे बना रखे हैं वही यूजर आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे देखने को. क्लियर? सो इट मीन्स दैट बोथ आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर. ये दोनों ही आपस में क्या हुए हैं इंटीग्रेटेड है, ये दोनों ही आपस में क्या हुए हैं कनेक्टेड है. Okay, no problem. So let's start from very basic. ये Azure AD का panel है and in the Azure AD panel uh, we are able to find n number of options. ठीक है, multiple users are available. GCP, Azure, Alibaba,
टाटा, राहुल, एन नंबर ऑफ यूजर एंड ग्रुप्स आर अवेलेबल. यहाँ पे हम मल्टीपल यूजर्स आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. नाउ question: how we can manage the users using Azure Active Directory? We are able to find new, download user, bulk operation, refresh, and manage and multi-factor authentication. So just wanted to know about ये जो options दिखाई पड़ रहे हैं हमें user में, how much you compatible with these points? हम्म, ये जो डिस्प्ले नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम, ये Sorry, can you please repeat? आप किस इनके बारे में बात कर रहे हैं ना, डिस्प्ले नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम और ये यूजर टाइप. नहीं 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 नहीं. New user, download, bulk, manage, multi-factor authentication. इनके बारे में. न्यू यूजर के लिए हमें अगर न्यू यूजर क्रिएट करना है तो न्यू यूजर पे जाएंगे. डाउनलोड यूजर है जो पहले ऑलरेडी डाउनलोडेड है, उन यूजरों की लिस्ट हम्म. निकालनी है तो हम डाउनलोड यूजर पे जाएंगे. और बल्क ऑपरेशन का ये है कि अगर किसी ग्रुप में हमें बल्क में कोई यूजर डालने हैं तो हम CSV फाइल के थ्रू हम उसमें डाल सकते हैं बल्क ऑपरेशन करके. ठीक है. इट विल गिव अस अ टेम्पलेट, काइंड ऑफ टेम्पलेट. ये हमें एक टेम्पलेट असाइन करेगा मींस बल्क यूजर के केस में जो CSV की बात कर रहे हैं. एंड देन विल जस्ट नीड टू यूज द CSV टेम्पलेट एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू यूजर्स जो आप तैयार करना चाहते हैं. एंड देन वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर इट. इज दैट करेक्ट? करेक्ट. फाइन फाइन फाइन. सो ग्रेट. सो बल्क ऑपरेशन में तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं: बल्क क्रिएट, बल्क इनवाइट, बल्क डिलीट. जस्ट वांटेड टू नो अबाउट बिकॉज द क्रिएट एंड डिलीट बोथ आर self explained. So I wanted to know about bulk invite. What is meaning of bulk invite? And in बल्क which इनवाइट. case we need to send the invitation to our user. ओके. बल्क इनवाइट का नहीं पता कैसे क्या करना. Okay, what is meaning of invite? Means in which case we need to invite it. इनवाइट मीन किसी को इनवाइट करना, जैसे कि बल्क इनवाइट, या फिर ऑन प्रीमिस जो एडी है वहां से हमें यूजर यहाँ पे लेके आने हैं. माइट नहीं, बी. वो तो फिर हाइब्रिड हो जाएगा ना. चलो, नॉट एन ओके. इशू. लेट्स टॉक अबाउट द concept of users management over a Azure AD. Azure AD में users को हम कैसे मैनेज करते हैं? Configure and manage Azure AD users. So in case of Azure AD, we are able to find multiple way to set up our user. एक जो ऑप्शन हमें दिखा था which is related to new user, right? It means that you wanted to create your user by self. इस केस में हम अपने अकॉर्डिंग यूजर तैयार करेंगे. दूसरा ऑप्शन है अपने पास इनवाइट यूजर. एंड जो आप सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, विच इज कंसीडर एज ए श्रिंक, एटी श्रिंक यूजर. द लास्ट ऑप्शन वी आर एबल टू फाइंड एटी shrink user. It means that we are able to set up three different types of user over a Azure portal, and it's our responsibility. We should know about the cases why we need to use a new user, invite किस केस में करेंगे, और synchronization का क्या रोल है. Means in which case we need to proceed and synchronize our users from on-premises AD to Azure. New user in the sense because we are managing our user for indirectly Intune portal. इनडायरेक्टली हम जो ये यूजर्स मैनेज कर रहे हैं ना, वो हम अपने इंट्यून पोर्टल के लिए कर रहे हैं ताकि हम उसी यूजर का इस्तेमाल करके ऑन प्रोमाइसिस डिवाइसेस को इनरोल कर सकें. इज दैट करेक्ट? करेक्ट. जो बट ये यहाँ पे मेरा यूजर्स. एक, हाँ, हम्म.
यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब हम पहले ऑन प्रेमिस एडी था, उस पे हम यूजर बनाते थे, तो यूजर क्रिएट करने के बाद डोमेन पे ज्वाइन करने के बाद कंप्यूटर में यूजर लॉगिन हो जाता था। बट यहाँ पे क्या है कि एडी के अंदर हम यूजर क्रिएट करें तो लॉगिन कर सकता है क्या कंप्यूटर के अंदर डोमेन एडी ज्वाइन करने के एज्योर, बाद? देखो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने यूजर क्लाउड पे बनाया है, एज्योरिटी पे बनाया है, और ऑन प्रोमाइसिस ओके, विंडोज 10 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, या राइट, और आपने उसको एडी ज्वाइन से कनेक्ट करा दिया है, तो क्या हम उस यूजर से लॉगिन करा पाएंगे कि नहीं? इज दैट करेक्ट? यस, बिल्कुल करा सकते हैं। एडी ज्वाइन अगर आपका है और आपका सिस्टम वर्क ग्रुप में है, ध्यान रखना, वर्क ग्रुप में है और आपका कंप्यूटर एडी ज्वाइन है, तो डेफिनेटली वी आर एबल टू लॉग इन। एडी ज्वाइन का जो बेसिकली पर्पज है ना, ये तीन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडी ज्वाइन यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर ऑन प्रोमाइसेस यूजर्स पासवर्ड। एडी ज्वाइन कैन हेल्प यू टू स्टोर योर बिट लॉकर कीज ओवर एज्योर पोर्टल। और तीसरा ऑप्शन होता है जब आप एडी ज्वाइन के जरिए अपने पोर्टल को, अपने पोर्टल इन द सेंस एज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज को क्या करना चाहते हैं, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उस डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं अपने ऑफिस 365, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के पोर्टल पे। तो एडी ज्वाइन वाले में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हाउ इट वर्क। आप ऑन प्रोमाइसेस पे मशीन बनाइए, एडी ज्वाइन करिए, एडी ज्वाइन करने के बाद जो यूजर आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से बनाएंगे, वो सभी यूजर वो सभी यूजर आपके ऑन प्रोमाइसेस को आसानी से लॉग इन कर पाएंगे, नॉट एन इश्यू। ओके, ओके। क्लियर? मतलब अजोर एडी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम डोमेन पे ही ज्वाइन हो गए हैं। वो डोमेन के लिए ज्वाइन करने के लिए तो हमें ऑन प्रीमिस एडी पे ही ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे डोमेन बना के। देखो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है एडी ज्वाइन और एडी कनेक्ट के बीच में, ठीक है? एडी कनेक्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है, एडी ज्वाइन दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ हमें माइंड में रखना है कि एडी ज्वाइन एंड एडी कनेक्ट दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से, अच्छा, ठीक अच्छा। है? एडी कनेक्ट इज अ प्रॉपर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। एडी कनेक्ट क्या है? एक तरीके का प्रॉपर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एडी ज्वाइन इंडिविजुअल मशीन को कनेक्ट कराएगा, नो मैटर कि आपका जो सिस्टम है ऑन प्रोमाइसेस पे, विच इज अ पार्ट ऑफ वर्क ग्रुप या डोमेन का पार्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये आपके हर एक मशीन को एडी ज्वाइन से कनेक्ट करा देगा। ओके, इज दैट ओके? इज दैट ओके? ओके। So you can say that we have a huge gap, बहुत बड़ा गैप है इन केस ऑफ सेटिंग अप आवर, व्हाट वी कैन से दैट, सेटिंग अप आवर एडी जॉइन सर्विसेज। तो जो हम डोमेन बनाते हैं डोमेन ज्वाइन करने के लिए, तो डोमेन पहले हम ऑन प्रेमिस पे बनाते थे, तो क्या अभी हम क्लाउड पे बनाते हैं उसको अभी? नहीं 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 नहीं, डोमेन की को कंपेयर हम एज्योर से कर ही नहीं सकते। आप एडीडीएस की बात कर रहे हो, हाँ, एडीडीएस हाँ। को हम अपने एज्योर से कंपेयर नहीं कर सकते। एडीडीएस के पास जो सर्विसेज है वो एज्योर के पास नहीं है, जो एज्योर के पास सर्विसेज है वो अपने ऑन प्रोमाइसेस एडीडीएस के पास नहीं है, ठीक है? अच्छा, दोनों को ऐसा है। सेग्रीगेट करके रखो, दोनों को अलग करके रखो। जो जो परमिशन पॉलिसी और डेलीगेशन हम आप ऑन प्रोमाइसेस पे एडीडीएस से कर पाएंगे ना, वो एज्योर नहीं दे पाएगा। अच्छा, अच्छा। आप ग्रुप पॉलिसी नहीं लगा सकते हैं एज्योर से, राइट? ओके, आप केवल ग्रुप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एडीडीएस से, या फिर आपकी डिवाइस इंट्यून पे इनरोल हो। इंट्यून से भी आप ओके। जीपीओ लगा सकते हो और ऑन प्रोमाइसेस से भी जीपीओ लगा सकते हो। इज दैट करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। क्लियर, है क्लियर। ना? आपकी बात। लेकिन हाँ, हाँ। एज्यूरेडी आपको ऑप्शन नहीं देता जीपीओ के लिए। वो बोलेगा पहले आप अपनी इस मशीन को इंट्यून के पोर्टल पे ले जाओ, राइट? और इंट्यून आपको ओके, फैसिलिटी देगा कि ये रहा ग्रुप पॉलिसी, आप इसको अप्लाई कर दो। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे बात हो रही है, वी आर ट्राइंग टू एक अंडरस्टैंड अबाउट एक द यूजर। यस, एक क्वेश्चन और मेरा। प्लीज। जब हम ऑटो पायलट से मशीन इनरोल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डोमेन ज्वाइन हो जाता है। तो वो डोमेन ऑन प्रेमिस पे डोमेन होता है एडीडीएस, उस पे ज्वाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब आप ऑटो पायलट कॉन्फ़िगर करते हो तो रिमेंबर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं ऑटो पायलट में भी कॉन्फ़िगर करने के लिए। एक एडी कनेक्ट हाइब्रिड रहता है और एक एडी ज्वाइन रहता है, रिमेंबर? जब आप ऑटो पायलट के लिए प्रोफाइल तैयार करते हो ना, तो उस हाँ, केस में हाँ। आपसे दो क्वेश्चन पुटअप करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वहां पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। आपका अच्छा, सेटअप एडी एजर एडी कनेक्ट हाइब्रिड है या एजर एडी ज्वाइन है, गॉट इट?
अगर एडी ज्वाइन है तो आपकी मशीन वर्क ग्रुप पे है या डोमेन पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज अच्छा। दैट ओके? बट अगर आपका ओके। हाइब्रिड है तो जो अपनी मशीनें ऑन प्रोमाइसिस पे हैं वो ऑटोमेटिक आपके डोमेन का मेंबर होंगी। ओके। ठीक है। ठीक है ना? तो ये थैंक यू। सारी चीजें जो है ना बैकएंड के लिए समझने के लिए, बैकएंड समझने के लिए हमें एडी पार्ट, चाहे वो एज्यूर एडी हो चाहे ऑन प्रोमाइसिस एडी हो, दोनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इसमें कॉन्सेप्ट। ओके। ओके। इज दैट ओके नाउ? ओके। ओके। चलो अभी हम यहाँ पे पहले तो यूजर को सेग्रीगेट कर लेते हैं कि इन विच केस वी नीड टू क्रिएट अवर यूजर्स। New user in the sense like we don't want to use hybrid infrastructure, means अपने पास कोई भी लोकल पे डोमेन नहीं बना रखा है, लोकल पे ADDS सर्विस नहीं इंस्टॉल कर रखी है। वी हैव ओनली Azure पोर्टल, और Azure पोर्टल में AD है, AD का एक्सेस है एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का एक्सेस है। यू नीड टू क्रिएट अ फ्रेश यूजर। आप यहाँ से क्या करेंगे, फ्रेश यूजर क्रिएट करेंगे जो कहीं पे भी अवेलेबल, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। यू नीड टू क्रिएट अ फ्रेश यूजर इन द सेंस इस यूजर का कोई भी अता पता नहीं था नॉन प्रोमाइसिस पे और ना ही किसी दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूजर बनाया राज नाम से, तो इस राज की जो प्रॉपर्टीज है उस पे पूरी तरीके से जो राइट्स है ना वो एज्यूरेडी के राइट्स है। ओके। Got it what I'm saying? एज्यूरेडी का राइट्स इन द सेंस वो इस पोर्टल का ऑनर है, इस टेनेंट का ऑनर है जो आपने एडी के लिए इस्तेमाल किया है। No one can apply the policy, no one can make a changes with your user. हाइब्रिड में क्या है, गेस्ट में क्या है, गेस्ट का ऑनर जो है वो अपने आप से चेंज कर सकता है। हाइब्रिड में लोकल में बैठा हुआ एडीडीएस का बंदा वो आपके यूजर को रिप्लेस कर सकता है। गॉट ओके। इट व्हाट आई एम सेइंग? यस यस। अभी क्लियर हो जाएगा, वेट वेट, अभी क्लियर हो जाएगा। न्यू यूजर इट्स अ टाइप ऑफ फ्रेश यूजर दैट मैनेज बाय द एज्यूर AD, 100% मैनेज बाय द एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी। इसमें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेट्स टॉक अबाउट द गेस्ट ताकि आपको ये न्यू यूजर आसानी से समझ में आ जाए। इनवाइट यूजर्स, तो इनवाइट इन द यूजर इन द सेंस यू कैन कंसीडर इट एज ए एक मिनट गेस्ट यहाँ पे मैं देता यूजर हूँ, अकाउंट। जो हम इंट्यून में यूजर बनाएंगे वो जाके एजोरिटी पे ही बनेगा। 100% वो एडी में sync, वो दोनों इंटीग्रेटेड है ना। हाँ हाँ ठीक है। जो यूजर आप बनाओगे, ध्यान रखना आप खुद से बना रहे हो पोर्टल का इस्तेमाल करके, चाहे वो आप इंट्यून का पोर्टल इस्तेमाल करके बनाओ या फिर एज्यूर AD का पोर्टल इस्तेमाल करके बनाओ, दोनों ओके। यूजर आपके फ्रेश यूजर कहलाएंगे, दोनों यूजर आपके न्यू यूजर कहलाएंगे। इज दैट ओके ओके? ग्रेट। ग्रेट। और अगर आपके पास हाइब्रिड इन्वायरमेंट है तो आपको यूजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्लाउड से, वो लोकल का बंदा बनाएगा आपके पास सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है? ओके। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज गेस्ट यूजर, और इसको लाने पिक्चर में लाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? The importance of guest user account and why we need to use the guest user account in our Azure Active Directory panel. What is what I'm ओके। saying? So guest user ऐसे ही होते हैं. You can say that like for example, you started working with one of organization. For example, you just started your journey with the IBM. आप just अभी IBM में आपने आपका selection हुआ है. For example, right? And everything is okay, you submitted your entire document, but unfortunately कंपनी ने अभी आपके नाम से ईमेल आईडी नहीं बनाई, राइट? ड्यू टू रीजन ऑफ सम वेरिफिकेशन आपका ऑफिशियल मेल आईडी आपको नहीं ऑथराइज हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली कंपनी स्टार्टेड अ टेक्निकल ट्रेनिंग, जो कि नॉर्मल इंडक्शन बैच वगैरह चलते नहीं, बूट कैंप बैच वगैरह चलते हैं कंपनी के, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया और आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी नहीं है। व्हाट इज व्हाट आई एम सेइंग? सो यस यस। वो आपकी पर्सनल मेल आईडी आपसे मांगेंगे, डेफिनेटली उनके पास आईडी है ही है। तो जो आपकी जीमेल अकाउंट है, जो आपका याहू मेल अकाउंट या आउटलुक जिस पे भी आप यूज करते हो, पर्सनली यूसेज जो है आपका, उस मेल आईडी पे, उस मेल आईडी को वो एज ए गेस्ट अटैच कर लेंगे। ठीक है? वो उस पे उसको उस आईडी को वो एज ए गेस्ट अटैच कर लेंगे ताकि आपके यूजर को जीमेल अकाउंट को टीम्स का मेंबर बनाया जा सके, टीम्स के अंदर जो मीटिंग शेड्यूल है ना उस शेड्यूल का पार्ट बनाया जा सके, आपको वन ड्राइव का एक्सेस दिया जा सके, आपको शेयर पॉइंट का एक्सेस दिया जा सके, आपको ऑफिस पे पैकेज, ऑफिस के एप्लीकेशन जो है उनकी सर्विसेज आपके साथ शेयर की जा सके, आपके अकाउंट को वो एज ए
गेस्ट यूजर मानेंगे फॉर टेम्परेरी बेसिस. इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर. Training is already started, but you don't have a official mail ID. तो डेफिनेटली वो अदर डोमेन को तो अटैच नहीं होने देंगे कि कोई भी बंदा आपके ट्रेनिंग में अटैच हो जाए. सो दे विल ऐड यू एज ए गेस्ट. वो आपको एज ए गेस्ट अटैच करेंगे अपने अकाउंट में. और ट्रेनिंग जैसे ही आपकी ऑफिशियल मेल आईडी आ जाएगी, जैसे ही आपकी ऑफिशियल मेल आईडी आ जाएगी, they will change your mail ID from guest account to परमानेंट अकाउंट. वो आपका ऑटोमेटिकली वो बैकएंड से रिप्लेस कर देगा. इज दैट ओके? प्लीज कंफर्म. ओके ओके. अब लास्ट आता है एडी सिंक. एडी सिंक क्या है? एडी सिंक का कॉन्सेप्ट एज पर द नेम सजेस्ट. मान लीजिए ये आपका ऑफिस 365 का पोर्टल या इंट्यून का पोर्टल है जहाँ पे आपको एज्योर एडी का एक्सेस मिल रहा है. दिस इज आवर एज्योर एडी पैनल. ये अपने पास एज्योर एडी का पैनल है. एंड वी आपकी आवाज आपकी आवाज गई. आपकी आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज गई मंजित. आपकी आवाज नहीं आ रही. एडी ये लोकल है. यहाँ पे आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. एज वी नो दैट वी आर एबल टू सेट अप आवर ऑन यूजर्स. वी कैन मैनेज आवर ग्रुप्स. ठीक है, यहाँ पे हम यूजर को अटैच कर सकते हैं. हम यहाँ पे अपने ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं. वी आर एबल टू सेट अप आवर पॉलिसीज, डेलीगेशन, प्रिंटर, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे. मान लीजिए यहाँ पे आपने यूजर्स में जाकर के कुछ यूजर्स तैयार किए हैं ऑन प्रीमाइसेस के लिए. ABC is a user, XYG is a type of user, test एक तरीके का user है, and maybe AWS is also a type of user. अब ये जो 4 यूजर हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी इनकी सारी इंफॉर्मेशन HR टीम ने शेयर कर रखी है. इंफॉर्मेशन आई एम टॉकिंग अबाउट द एट्रीब्यूट्स, राइट. जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है ना, जो मतलब इनके कॉन्टेक्ट नंबर, इनका मैनेजर कौन है, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑटोमेटिक पे फिलअप है. अब इसका बेनिफिट क्या है कि सारे टास्क तो कंप्लीट है. हमारे जितने भी टास्क है ना, वो सारे टास्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है. ओके. नाउ देन व्हाट एग्जैक्टली हैपन इफ एवरीथिंग इज ओके? देन ठीक है, हमें थोड़ा सा कम टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा. हम अपने इन सभी यूजर्स को यहाँ से उठा करके एडी में शिफ्ट कर देते हैं. हमारा टाइम बचेगा. हमारा जो इन्वेस्ट है, जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो टाइम हमारा काफी हद तक बच जाएगा. यू विल फाइंड ABC, यू विल फाइंड XYZ, या जितने भी यूजर्स आपने ऑन प्रीमाइसेस पे बनाए थे, वो यूजर एज इट इज विद इंटायर इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, उन सभी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इनको क्लाउड पे एज एक्टिव डायरेक्टरी पे सिंक्रोनाइज करें. इज दैट ओके? सभी इंफॉर्मेशन आप ऑटोमेटिकली एज रेडी के पैनल पे सिंक्रोनाइज करेंगे. ये आपका कहलाएगा एज एडी सिंक यूजर. इनको हम क्या बोलेंगे? एज एडी सिंक यूजर. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अश्विनी के लिए नहीं? यस 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 मंजित. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं. कभी कभी आपकी आवाज कट जाती है, पता नहीं क्या. नोट तो मेरी तरफ से ही है. चलो कोई नहीं, अभी क्लियर आ रही है. हाँ, अभी आ रही है. ठीक है, नो इशू. सो अब हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दीज यूजर्स. अब आप देखिए यहाँ पे कई सारे यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और यूपीएन के बाद, यूजर प्रिंसिपल नेम के बाद, यू आर एबल टू फाइंड 2 मोर ऑप्शन. यूपीएन के बाद 2 और ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं.
ठीक है, यहाँ पे यूपीएन के बाद दिस इज द यूजर प्रिंसिपल नेम, ये डिस्प्ले नेम, ये यूजर प्रिंसिपल नेम, यूजर टाइप एंड ऑन प्रोमाइसेस। अब देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। यस। यूजर नेम के बाद यूपीएन के बाद आप देखिए सभी मेंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, राइट, ऑल आर द मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि आपके इस अकाउंट में ना कोई भी गेस्ट यूजर नहीं है आपने अटैच किया, ओके। राइट। इस पर्टिकुलर पैनल के अंदर आपने कोई भी गेस्ट यूजर असाइन नहीं कर रखा है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू फाइंड ऑल द ऑप्शंस व्हिच इज रिलेटेड टू द मेंबर। बट इसके बाद अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ऑन प्रीमाइसेस सिंक्रोनाइज्ड इनेबल। अगला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऑन प्रीमाइसेस सिंक्रोनाइज्ड यूजर, synchronized enable. So in case of on devices synchronized enable, we are able to find two different options. एक यूजर के सामने यस दिखाई पड़ रहा है, कुछ यूजर के सामने नो दिखाई पड़ रहा है, ओके। राइट। these राइट। option these option can identify, these option you can use to identify कि कौन सा यूजर ऑन प्रीमाइसेस से आया है और कौन कौन सा यूजर आपका आपने अपनी तरफ से क्रिएट किया है। इज दैट ओके? ओके। ओके। The users that we are able to find yes, जिस यूजर के सामने yes ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, वो आपका कौन सा यूजर है, लोकल से सिंक्रोनाइज करके लाया है आपने, ठीक है। यस। और जिस यूजर के सामने आपका नो दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली यू क्रिएटेड दिस यूजर, उन यूजर्स को आपने क्रिएट करा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो। अगर कोई गेस्ट यूजर आता है तो उसका मतलब ये जो यूजर टाइप क्या होगा, उसको कैसे पता लगेगा कि ये गेस्ट यूजर? वो मेंबर की जगह पे गेस्ट हो जाएगा, सिंपल। ओके। वो मेंबर मेंबर की की जगह जगह। पे वो गेस्ट हो जाएगा, सिंपल। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये जो तीनों में गैप है, इज दैट ओके? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, ओके। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू create user. This is our panel that we open through the Intune portal, और आप चाहे यहाँ पे यूजर बना लो। अब देखिए सेम ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर। सेम ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और सेम ऑप्शन आपको एज रेडी के पैनल पे दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स हाँ। दैट the users management are equal to each other, जो यूजर्स मैनेजमेंट है वो इक्वल है टू ईच अदर। आई वांटेड टू डिस्क्राइब वन मोर पॉइंट, बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपन जब भी हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं ना, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, स्पेशली एंटरप्राइज के केस में, देखिए भी सर लिमिटेड एक्सेस, वो हमें क्या करते हैं, लिमिटेड एक्सेस देते हैं कि भाई आपका टास्क है ऑटो पायलट में डिवाइसेस को इनरोल करना, या आपका टास्क है मैक डिवाइसेस को इनरोल करना, या आपका टास्क है एंड्रॉइड डिवाइसेस को इनरोल करना। सो इस केस में क्या है, जो बैकएंड की एक्टिविटी है वो हमसे ड्रॉप हो जाती है। हाँ। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? अब यस। यहाँ पे हम जाते हैं किसी यूजर्स की प्रॉपर्टी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई एम गोइंग टू ओपन द टाटा यूजर। अंडर द टाटा यूजर यू आर एबल टू फाइंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लाइसेंसेस। अंडर द लाइसेंसेस वी आर एबल टू फाइंड एक लाइसेंस, इस पे हमने बिजनेस स्टैंडर्ड का असाइन कर रखा है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन असाइनमेंट्स because ओके। I wanted to assign the license for the Microsoft Intune। तो आप देखिए यहाँ पे कितने लाइसेंसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अभी तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, तीन ऑप्शन। दिस इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, इसको क्लिक करेंगे ये आपको लिस्ट बता देगा कि आपको इतने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। बट हमारा ओके। टास्क वो नहीं है। अगर आप P2 पे क्लिक करेंगे तो P2 में आपको सेग्रीगेट करके ये ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको पावर बीआई पे क्लिक करना है, पावर ऑटोमेशन पे, तो आपको ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे, विच इज कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइडेड बाय Microsoft server, Microsoft services. But I don't think we are able to find any option related to Intune license। आप इनमें से किसी भी लाइसेंस का इस्तेमाल करके ना आप अपने इस टाटा यूजर को किसी मशीन को इनरोल नहीं करा पाओगे। आर यू एबल टू इनरोल एनी मशीन बाय यूजिंग टाटा यूजर? नो आइडिया। नहीं, हम जब कभी किसी डिवाइस को इनरोल कराते हैं तो उसमें प्री रिक्विजिट क्या होती है? उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। पहले तो यूजर होना चाहिए, फिर लाइसेंस होना चाहिए। इज दैट करेक्ट? हाँ। यस, आप, है ना, आप अपने
किसी भी डिवाइस को ऑन प्रीमाइसेस को, एक सिंगल एग्जांपल लो ना, एक अपने लोकल मशीन का एग्जांपल लो कि मेरे पास विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई एम प्लानिंग टू एनरोल इट, ठीक है, हम इसको एनरोल करना चाहते हैं पोर्टल पे, इज दैट ओके? ओके तो उस डिवाइस को एनरोल करने के लिए आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, उसके साथ साथ लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस भी ओके इसके सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं कोई भी लाइसेंस काम करेगा। आप उस लाइसेंस पे क्लिक करिए और उस लाइसेंस के अंदर आपको इंट्यून का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। आई डोंट थिंक वी आर एबल टू फाइंड एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू इंट्यून। हमें तो यहाँ पे ओके कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है जो इंट्यून की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर पाए। ओके इट मीन्स दैट ये लाइसेंस हमारे काम का नहीं है। चलिए एडी ओके में देख लेते हैं। इसमें भी प्रीमियम 1 प्रीमियम 2 है, एज्योर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा, डिफाइंडर जो नई सिक्योरिटी इन्होंने लॉन्च की है ना, वो डिफाइंडर मिल जाएगा आपको, ऐप डिस्कवरी मिल जाएगा, बट इंट्यून का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। क्लियर? ओके सो इट मीन्स ठीक दैट करंट टाइम पे अपने पास जितने यूजर है ना, वो कोई भी यूजर हम अभी अपनी डिवाइसेस को इनरोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रीजन इसका सबसे बड़ा यही है कि अपने पास लाइसेंस नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ओके ओके है। मतलब नाउ कुछ क्वेश्चन, लाइसेंस कुछ नहीं कुछ लाइसेंस लाइसेंस है ही नहीं अभी अपने पास। अच्छा अच्छा अपने पास जिस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है ना, वो लाइसेंस नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी लाइसेंस नहीं है। अपने पास जिस लाइसेंस की जरूरत है मेन टीम के लिए, वो लाइसेंस छोड़ करके बाकी सारे लाइसेंसेस हैं, ओके ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि ये इंट्यून की पोर्टल पे जितने भी यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनका इस्तेमाल करके हम किसी भी डिवाइस को इनरोल कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाइसेंस नहीं है। मेरा ओके क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि आपको सिर्फ इसका एक्सेस दिया गया है, इस एडमिन सेंटर का एक्सेस दिया गया है, राइट? दिस इज द पैनल, और इसका आपको फुल एक्सेस दिया गया है। माय क्वेश्चन इज हाउ वी कैन गेट द लाइसेंस इस पोर्टल के थ्रू। इस पोर्टल के थ्रू आपने बताया था कि हम लाइसेंस साइन नहीं कर सकते, हमें एजुअर आईडी पे ही जाना पड़ेगा। दैट्स वाई दे सेग्रीगेट द टास्क, और हमें जो है वो दोनों पे आने चाहिए। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, एजुअर रेडी पे भी ठीक ठाक होना चाहिए, इंट्यून पे तो रहना ही चाहिए। ओके We are unable to find any single option, we are unable to find any single option that give us a facility to access the licenses। नहीं है हमारे पास कोई लाइसेंस। अब लाइसेंस के लिए आपको एडी पे जाना पड़ेगा। एडी के पैनल ने आपके लिए एक प्लेस इस्टेब्लिश कर रखा है दैट गिव अस ऑप्शन टू सेट अप अ लाइसेंसेस। अब देखिए यहाँ पे वी आर एबल टू ओपन इट एंड वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द लाइसेंसेस। और लाइसेंसेस कहाँ पे आएगा? यू नीड टू फाइंड बिलिंग, अंडर द बिलिंग या तो सब्सक्रिप्शन है या तो लाइसेंसेस। लाइसेंसेस पे जाएंगे, कितने लाइसेंस आपके पास हैं, कितने लाइसेंस आप परचेज करना चाहते हैं, उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। आपके पास लाइसेंसेस कितने असाइंड हो गए हैं, कितने यूज हो गए, कितने रिमेनिंग है, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन। इज दैट करेक्ट? ओके प्रीमियम 2 करेक्ट 100 लाइसेंस थे, पूरा का पूरा बचा है, हमने कोई भी लाइसेंस अभी यूज नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो स्टैंडर्ड है, 25 लाइसेंस मिले थे हमें, 6 लाइसेंसेस हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 19 लाइसेंसेस अभी अभी अपने पास रिमेनिंग बचा। माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेट फ्री लाइसेंस 10,000 लाइसेंस इन्होंने असाइन कर रखा है, एंड 3 लाइसेंस जिनमें से हमने यूटिलाइज कर लिए, बाकी के लाइसेंस 9,997 लाइसेंसेस आ रही है, ठीक है। ठीक अभी भी इंट्यून का कोई लाइसेंस हमें नहीं दिखा है, राइट? इंट्यून का कोई भी राइट लाइसेंस हमें नहीं दिखा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ट्राई या फिर बाय। ओके अगर आप चेक करोगे कि क्या आपके पास फ्री वाला अवेलेबल है, तो वेल एंड गुड है। अगर फ्री नहीं अवेलेबल है तो प्लीज आप परचेज करिए। इज दैट करेक्ट? करेक्ट एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये ना कुछ चेंजेस किए हैं बैकएंड में। चेंजेस इन द ओके सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजेस रिलेटेड टू द वैलिडिटी, चेंजेस रिलेटेड टू द वैलिडिटी। सो पहले ये था, शायद अभी भी वही है, आइडेंटिफाइड। पहले जो ये लाइसेंसेस देते थे ना इसमें, वो 30 डेज के लिए रहता था। ये हमारा जो लाइसेंस है ना,
अगर आप इसको फ्री ट्रायल एक्टिवेट करते हो तो ये 30 डेज के लिए था, बट नाउ वट इज दे मेड इट फॉर 90 डेज. यस. ओके इज दैट ओके? ओके 250 आपको लाइसेंस मिलेंगे. 250 licenses you will get in this particular enterprise mobility plus security E5 that give us option to use for 250 लाइसेंस, 250 यूजर्स. और इसकी जो वैलिडिटी होगी इस लाइसेंस की फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 3 महीने की रहेगी, 90 डेज की रहेगी. आपको जितनी इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो कुछ सीखना है, आप इनसे लाइसेंसेस से सीख सकते हैं. इज दैट ओके? ओके ना. अब एक छोटे से क्वेश्चन, अभी हम लाइसेंसेस पे रहेंगे, क्योंकि अगर आपका लाइसेंस क्लियर हो गया तो आप चाहे ऑटो पायलट से इनरोल करो, चाहे आप मैनुअल इनरोल करो, चाहे कंपनी पोर्टल से इनरोल करो, वो सारी चीजें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी. ओके अभी हम लाइसेंसेस भी है, वी अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू एक्टिवेट द लाइसेंस, जिसमें क्लियर क्लियर मेंशन है कि इफ यू वांट टू एक्टिवेट और डिसेबल द लाइसेंस, भाई एज्योर एडी का एक्सेस आपके पास होना चाहिए. इफ यू डोंट ओके हैव Azure AD एक्सेस, यू आर अनेबल टू डू दैट. आपको अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करना चाहिए और उनको बोलना है, उनको बताना है कि आई नीड टू एक्टिवेट द लाइसेंस, आई नीड टू ऐड द लाइसेंस टू माय यूजर. नहीं नहीं, यूजर को लाइसेंस आप असाइन कर पाओगे, आपको ओके नया लाइसेंस परचेज नहीं कर पाओगे. यस. अच्छा ओके परचेज करना पड़ेगा और बाद में वो इंट्यून पोर्टल पे दिखेगा वो लाइसेंस हम उसको साइन कर सकते हैं वहां से एग्जैक्टली ना, आप इनेबल करने के अलावा बाकी सारी एक्टिविटी कर पाओगे. आप अपनी ओके तरफ से इनेबल नहीं कर पाओगे, सिंपल सा बात. ओके ठीक है. ओके ना माय क्वेश्चन इज, एंटरप्राइज मोबिलिटी, हमने जो लाइसेंस अभी चेक किया कौन सा है? एंटरप्राइज, मोबिलिटी सिक्योरिटी E3 है ना, ये वाला लाइसेंस मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी E5, E3 सॉरी. ओके E3 और E5 दोनों होते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है इसका अच्छा नहीं नहीं, वो परचेज है, वो परचेज करना पड़ेगा अच्छा आपको. ओके E5 आपके पास है, E3 आपको परचेज करना पड़ता है. E5 आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है 90 डेज के लिए. आफ्टर दैट यू हैव टू पे. चलो. ओके. अब आपको ये फ्री ट्रायल लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. In case of free trial license, you will use these licenses for 90 days. पहले तो आपको वैलिडिटी मालूम होनी चाहिए 90 days. और how many licenses you will get? 250 licenses. Is that correct? करेक्ट My question is, आपने एक यूजर बनाया राज नाम से. दिस इज अवर एडी यूजर, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून यूजर. और आपने इसमें से एक लाइसेंस इसको असाइन कर दिया. ठीक है, ओके आपने एक लाइसेंस असाइन कर दिया. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एक यूजर एक लाइसेंस से कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हम इनरोल कर पाएंगे? ओके इस पे इसमें डिफाइन करते हैं हम कोई सेटिंग होती है इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि कितने 15 होते हैं या फिर पता नहीं 5 होते हैं ऐसे ऐसा करके देखा मैंने कभी ओके. यस. डिफॉल्ट वैलिडिटी, डिफॉल्ट जो कैपेसिटी होती है इस यूजर की, वो होती है 15 डिवाइसेस ओके पे. We are able to enroll up to 15 devices with the help of same license or with the help of same user. But my question is कि why we are able to add so much devices with the help of a single user or single license? इसका बेनिफिट क्या है?
इतनी सारी डिवाइसेस इनरोल करने का ऑप्शन क्यों दे रहा है? क्योंकि आई डोंट थिंक कि हर एक डिवाइस को हम ऑफिस में 15 यूजर को एक ही लाइसेंस से इनरोल कर पाएंगे, 15 डिफरेंट डिवाइसेस को एक ही लाइसेंस से इनरोल करेंगे, क्योंकि जो पॉलिसी आप एक पे लगाओगे वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट में चाहता भी नहीं कि एक ही पॉलिसी सब पे लगानी पड़े। अच्छा, मतलब क्वेश्चन ये है कि 15 डिवाइसेस क्यों इनरोल करने के लिए दे रहा है? क्योंकि यूजर के हाँ, पास मोबाइल हो सकता है, मैकबुक हो सकती है, दो तीन तीन चार दो डिवाइसेस हो सकते हैं। ग्रेट। सो बेसिकली आज के डेट में लगभग क्लाइंट के पास मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं। ऑफिस में उसका अलग सेटअप है, ठीक है। जब वो ट्रैवल करता है तो उसका सेटअप दूसरा होता है। जब वो घर पे रहता है तो उसका सेटअप अलग रहता है। मोबाइल फ़ोन उसके पास है, टैबलेट है, एंड ही आल्सो यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस टू मैनेज अवर ऑफिस एक्टिविटी, मेलिंग वगैरह के लिए। तो कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि अगर ऑफिस चाहता है कि हम अपनी हर एक एक्टिविटी को, राइट, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करें, बंदा किसी भी डिवाइस से यूज करे, एटलीस्ट वो डिवाइस हमारे पोर्टल पे इनरोल होनी चाहिए। ओके। That's why we are able to add multiple devices with the help of single. That's why we are able to add multiple devices. Sorry, multiple devices with the help of single license or single users. Is that clear? क्लियर। ओके। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस अबाउट कि जो लाइसेंस है उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट, जो हमारे पास यूजर हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द गेस्ट यूजर अकाउंट एंड नॉर्मल यूजर क्रिएशन एंड आवर हाइब्रिड यूजर। तो इनमें कोई क्वेश्चन? नहीं, इनमें कोई क्लियर। बेल का ऑपरेशन आपने बताया कि सीएसवी फाइल डाउनलोड करेंगे, उस सीएसवी फाइल के अंदर हम जो भी एडिटिंग कर देंगे, यूजर नेम मेंशन कर देंगे, पासवर्ड मेंशन कर देंगे। उसी सीएसवी फाइल को अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये आपको सीएसवी फाइल देगा। उस सीएसवी फाइल को अपलोड करने के बाद जितने नंबर ऑफ यूजर्स आपने असाइन किए हैं इस फाइल के अंदर, वो सभी यूजर्स आपके इमीडिएटली क्रिएट हो जाएंगे। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज एमएफए? मल्टीफंक्शन ऑथेंटिकेटर, जब हम लॉगिन करते हैं तो उस टाइम वो ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है, तो पासवर्ड देता है ऐसा करके कुछ सिक्योरिटी पर्पज से, तो वो पासवर्ड हमें पुट करना पड़ता है, वही मल्टी फंक्शन ऑथेंटिकेटर। करेक्ट। In case of multi-factor authentication, you know that जब भी हम Office 365 पे एडमिन की हेल्प से या इंट्यून पोर्टल की हेल्प से कोई यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो वी आर एबल टू क्रिएट जस्ट यूजर। हम इससे क्या करते हैं, एक यूजर बनाते हैं और दूसरा उसके ऊपर पासवर्ड लगाते हैं। ओके। अगर आपका यूजर सिर्फ और सिर्फ यूजर और पासवर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपकी की सारी सिक्योरिटी यूजर और पासवर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको बोला जाता है सिंगल ऑथेंटिकेशन। इसको क्या बोला जाता है? विच इज कंसीडर्ड एज ए सिंगल ऑथेंटिकेशन। ओके। और ये जो सिंगल ऑथेंटिकेशन है ना, एनीवन कैन गेस योर पासवर्ड। कोई भी आसानी से आपका पासवर्ड जो है ना, आसानी से कैप्चर कर सकता है, गेस कर सकता है। आप टाइप कर रहे हो, उसका की लॉगर चल रहा है,
वो आपकी कीज को देख करके गेस कर सकता है, आपकी कॉमन पासवर्ड से मैच करके गेस कर सकता है कि ये बंदा ये पासवर्ड बहुत यूज करता है, राइट? क्लाउड एट 123, एबीसी एट द रेट 123, क्लास एट द रेट 123। तो कहीं ना कहीं बंदा गेस करके भी आपके पासवर्ड पे आपके अकाउंट के अंदर एंट्री, आपके यूजर अकाउंट को ऑथराइज कर सकता है। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। कभी भी आज की डेट में, राइट, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ने तो ब्लॉक कर दिया है कि 14 डेज बाद, आफ्टर 14 डेज यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट द एमएफए, अदरवाइज हम आपको लॉगिन ही नहीं करने देंगे। अच्छा, ओके। माइक्रोसॉफ्ट पे आप अकाउंट बनाते हो, चाहे वो आप अपनी नॉर्मल ईमेल आईडी ही क्यों ना क्रिएट करो, 14 दिन बाद, आफ्टर 2 वीक्स, ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बनाइए। अगर आप एमएफए नहीं तैयार कर रहे हैं तो इट विल नॉट अलाउ यू टू लॉग इन, आपको ऑप्शन ही नहीं देगा लॉग इन करने के लिए। ठीक। ठीक है, ड्यू टू रीजन ऑफ ठीक है। सिक्योरिटी। चलो, अब ये सिंगल ऑथेंटिकेशन जो है, इसको इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिंगल ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रस्टेबल। एनीवन कैन एक्सेस योर पासवर्ड, एनीवन कैन गेट योर पासवर्ड, ठीक है ना, एनीवन कैन गेस योर पासवर्ड, और वो आसानी से चीजों को फिर मैनेज कर पाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप ये सिंगल ऑथेंटिकेशन के अंदर के बाद यूजर आपका रहेगा वही, आपका पासवर्ड भी वही रहेगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस विद योर पासवर्ड, एग्जिस्टिंग पासवर्ड पर कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं हम। और यहाँ पे सिर्फ कुछ नया रूल अटैच कर देंगे ताकि आपको बार बार अप्रूवल देना पड़े कि आप ही ऑनर हो, यू आर ट्राइंग टू लॉग इन योर यूजर। वो ओटीपी भी हो सकता है, वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे, रजिस्टर मोबाइल पे आएगा, वन टाइम पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, या फिर आप ऑथेंटिकेटर ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन आल्सो यूज ऑथेंटिकेटर ऐप जिसमें नोटिफिकेशन आएगा अलाउ डिनाई का, आप जस्ट अलाउ करेंगे या डिनाई करेंगे, वो आपका एक्सेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। नाउ, अगर आप ऐसी सर्विसेज एक्टिवेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगल ऑथेंटिकेशन से हट करके आपने 2 पार्ट और ऐड कर दिए, 3 पार्ट ऐड कर दिए, 4 पार्ट ऐड कर दिए, जो आपका ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा? मल्टी फैक्टर, मल्टी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर। कुछ भी नहीं करना है आपको, पोर्टल पे जाना है, एंड ओवर अ पोर्टल वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पर यूजर एमएफए, पर यूजर एमएफए पे क्लिक करेंगे, एंड इन द पर यूजर एमएफए यू विल फाइंड द ऑप्शन, जो भी यूजर हैं, टाटा के ऊपर डिसेबल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, मतलब हमने इस पे एमएफए नहीं लगा रखा है अभी। आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट द यूजर एंड क्लिक इनेबल। ओके। ये एडमिन करेगा बैकएंड से। अब इस यूजर को आप हैंड ओवर कर दोगे अपने क्लाइंट को, वो बंदा ओपन करेगा, आई एम क्लाइंट, थिंक अबाउट एज ए क्लाइंट, ऑफिस डॉट कॉम, ठीक है, ये हम ऑफिस डॉट कॉम ओपन करते हैं। ट्राई टू लॉग इन थ्रू द टाटा यूजर, टाटा एट द रेट टीच मी क्लाउड। आपने बैकएंड से कुछ कॉन्फ़िगर किया था, राइट? बैकएंड से आपने कॉन्फ़िगर किया था क्या? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इज दैट करेक्ट? ओके। करेक्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली आपको स्किप करने का ऑप्शन गायब हो गया, मतलब आप स्किप करेंगे ही नहीं, क्योंकि फोर्सफुली एडमिनिस्ट्रेटर ने आपके इस पोर्टल के इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर एमएफए एक्टिवेट कर रखा है, बिना एमएफए ओके। के आप लॉगिन भी नहीं करा पाओगे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट, एंड इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। नेक्स्ट करेंगे, दिस इज द इमेज। अब इस इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
अपने मोबाइल फोन में एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। Yes. माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसको आप कर लेंगे स्कैन। Okay. इज दैट करेक्ट? Correct. जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी स्कैन इट। और ये आपको एक कोड भेजेगा, उस कोड के जरिए आप अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को परमानेंटली एक्टिवेट कर दो। Scan your authenticator app। ये आपको कुछ कोड प्रोवाइड करेगा, you just need to click next। 29 आपको मोबाइल में टाइप करना पड़ेगा, 29, यस इट्स मी, ऑथराइज। हमने एक अप्रूवल दे दिया, दूसरा अप्रूवल आप दे दो इस पे अपने ओटीपी का, तभी होगा ये मल्टी फैक्टर। Okay. हमने दूसरा ऑथेंटिकेशन लगा दिया ओटीपी का, वन टाइम पासवर्ड का, कि कुछ भी हो हमारे पास, कोई भी बंदा ट्राई करे लॉगिन करने का, तो हमारे पास ये 6 डिजिट का कोड आए। Done. We successfully configured our OTP for, not OTP, for multi-factor authentication for Tata user। अब जितनी भी बारी आप इसको लॉगिन करोगे ना अपने इस टाटा यूजर को, हर बारी आपको ओटीपी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Clear. मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कई बार हमारा ना जो मल्टी फंक्शन ये फैक्टर ऑथेंटिकेटर काम नहीं करता, तो हम एडी टीम को बोलते हैं रीसेट वगैरह करने के लिए, तो वो करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते, वो इस पोर्टल पे आते हैं, ठीक है, जिस भी यूजर में प्रॉब्लम आ रही है उस यूजर को, जैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एमएफए पे गए, ओके। इसको हाँ। सेलेक्ट किया और इसको कर दिया इनफोर्स, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इसको कर दिया डिसेबल, 5 मिनट ओके। बाद फिर से इनेबल कर दिया, ओके। वो खत्म हो गया, पुराना सेटिंग गायब हो गया, बंदे का फोन गायब हो गया, बंदे का नंबर बंद हो गया, तो उस केस में क्या होगा, वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। देन ही विल हाँ हाँ। कोऑर्डिनेट टू एडमिनिस्ट्रेटर टीम, वो डिसेबल करेंगे फिर इनेबल कर देंगे। तो जो ओके, करंट फिर टाइम दोबारा से। पे बंदे के पास मोबाइल है या मोबाइल नंबर है, उससे फिर से ऑथराइज कर लेगा वो। ठीक है। देन दिस इज द डन। कॉन्सेप्ट ऑफ आवर एडी यूजर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको हम एमएफए कहते हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट? इसका नहीं पता बिल्कुल भी। चलो अब एक बार गो थ्रू करना है इसके बारे में, और ये हम कल प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। SSPR। एसएसपीआर, ओके। हाँ सेल्फ सर्विस मे, पासवर्ड रीसेट। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे लास्ट एक क्वेश्चन है कि हाँ जैसे कि हमने ऑटो पायलट से कोई डिवाइस इनरोल करी है और वो इंट्यून में आ हाँ जाती है, इनरोल हो चुकी है, और मिस्टेकली है ना कई बार वो डिलीट हो जाती है वो डिवाइस, तो उसको को हम हाँ, बैकअप ले सकते हैं या फिर लॉगिन करवा सकते हैं उसको दोबारा से यूजर को? नहीं बैकअप इसके प्रोफाइल का लेना है या फिर पूरी डिवाइस का बैकअप लेना है? डिवाइस का बैकअप लेना है। जैसे कि मान लो कोई यूजर काम कई दिनों से 5-6 महीने हो चुके हैं उसको कि यूजर काम कर रहा है और मिस्टेकली किसी एडमिन से वो डिवाइस डिलीट हो जाती है इंट्यून से, तो एकदम से लॉगिन वो फेल्ड हो जाएगा यूजर का वहाँ पे, हम्म हम्म। तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में वी जस्ट नीड टू ओपन अवर डिवाइस, मींस जो हमारी डिवाइस है ना उसके ऊपर दोबारा से आपको अलाउ करना पड़ेगा, वो प्रोफाइल जो है ना उसकी अपलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर से दोबारा इनरोल करना पड़ेगा वो इनरोल क्या, प्रोफाइल अपलोड करनी पड़ेगी, इट विल बी ऑटोमेटिकली गिव यू। कुछ और भी ऑप्शन है, सो लेट मी चेक एंड वो हम वो अपने उस वाले पार्ट में देख लेंगे, ओके ओके, ठीक है, बाद में। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द इंटरनेट सर्विसेज।
ठीक। Okay. थैंक यू वेरी, Yeah, बाय बाय take care. Bye bye. बाय।